unit weight of soil. So firstly, you have to find the unit weight. So what is the unit weight? Unit weight is weight of any weight upon volume. Weight upon volume, that is the unit weight. So firstly we find weight of the soil. After that we find the volume, and you can find the unit weight or dry density of that particular soil. So here some basic method of determination of the dry unit weight. First is core cutter method. Second is water displacement method. Third is sand replacement method. Fourth is water volume method, and fifth one is radiation method. So now discuss one by one each method. First is core cutter method. So firstly, you have to take some apparatus like this is core cutter, one is dolly, and third one is rammer. The dimension of the core cutter is dia is 100 mm and height is 130 mm, and dolly dimension is dia also 100 mm and the height is 55 mm, and one rammer is also there. The volume of the core cutter is 100 cc. So firstly, you have to go on a field and set the cutter over the field. After cutter, we place the dolly over it, and with help of rammer, we are inserted into the soil. Insert into the soil. The core cutter contains some soils from here, and we weight the cutter. We weight the all the soil. We weight the cutter soil. Here, let us assume the weight of empty cutter is W1 and weight of cutter plus soil is W2. Then you can find the weight of soil. What is it? W2 minus W1. That is the weight of soil. We also know the volume of the cutter, that is fixed. The cutter volume is 1000. So now you can find the unit weight of the soil upon volume. If you find the unit weight of soil, you can also find the dry unit weight. This formula is already discussed in last classes. What is dry unit weight? Dry unit weight is bulk unit weight upon 1 plus W. Here W is the water content in the soil. W is the water content in the soil. How can you determine? Last some methods are also discussed in water content method. The oven dry method is the best suitable and accurate method. This is also laboratory test. We are discussing some and numerical also in that topic. Next method is water displacement. Water displacement method. This method is also determining of the unit weight. So what we are doing this method? Firstly, we take a sample of a soil. We take a sample of soil. That soil must be in a clay, because sand particles not a part of not a part of lump. So firstly, we can take a lump of a clay particles, and then we coated the clay particles with the paraffin wax. When the sample is coated with the paraffin wax. The paraffin wax properties are also known, that is uh, unit weight and specific gravity of the paraffin wax. After coating the sample, we insert the sample in a water tank. The arrangement is always there that much water is displaced from that tank, that is collect in a measuring cylinder or measuring device that is uh, graduated with some units like 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, that is bound. So that much water is displaced from here, that is also noted here. The weight of we are already know about the Archimedes principle, that much which is water is displaced about a body, that is equal to the weight to be down at a cylindrical. ओके, ये अपन ने पहले क्लासेस के अंतर्गत पढ़ा हुआ है। जितना पानी डिस्प्लेस होगा वो इसके अंतर्गत मेजर कर लिया जाएगा। वाटर को मेजर करने के बाद में अपन निकाल सकते हैं कि यहाँ से इसका वॉल्यूम कितना आ गया। ठीक है, यहाँ से अपन पानी के अपन वाटर के वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे। आफ्टर दैट वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल आल्सो। हियर द सैंपल कंटेन्स सॉइल प्लस पैराफिन वैक्स। यहाँ सैंपल के अंदर क्या है, पैराफिन वैक्स और दोनों को लिया हुआ है। उसके बाद में अपन इसका वेट करेंगे, इसका पैराफिन वैक्स और पैराफिन वैक्स है सैंपल का। तो यहाँ से भी अपन पैराफिन वैक्स की वेट को अपन अलग कर दें तो अपन फाइनल क्या निकल जाएगा, यहाँ से अपन को वेट ऑफ द सॉइल अपन को यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा।
वेट ऑफ सॉइल सैंपल यदि अपन को यहाँ फाइंड आउट हो गया है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो वेट अपन को मिल गया, उसके बाद में वॉल्यूम भी अपन को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यूनिट वेट अपन आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ वेट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो यू कैन determine the unit weight also from this method, water displacement method. First two methods, core cutter method and water displacement method, are useful for clay soil. Clay soil, clay soil के अंदर क्या होता है, clay soil के अंदर जो particles हैं उनके अंदर आपस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा cohesion होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, cohesion उनके नीचे होता है और वो आपस में बने रहते हैं। इस वजह से सैंपल सैंपल है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, सैंपल क्या हो जाएगा अभी, डिस्प्लेस हो जाएगा। इस वजह से अपन क्या यूज करते हैं, क्ले के लिए इन दोनों मेथड्स को यूज करते हैं। नाउ कम ऑन द थर्ड मेथड, थर्ड मेथड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। In this method we use some apparatus like a pouring cylinder, a measuring device and a platform of the pouring cylinder. तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन ग्राउंड के ऊपर गए, ग्राउंड के ऊपर से यहाँ से अपन ने क्या किया, सॉइल को एक्सक्रीट किया, जितने सॉइल सैंपल है वो अपन ने यहाँ से एक्सक्रीट किया, एक्सक्रीट करने के बाद अपन इसका वेट ले लेंगे सिंपली। तो वेट ऑफ द सॉइल अपन को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये कोवरिंग सिलेंडर है इसको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे रखेंगे। जो स्पेस यहाँ से हो गया है, यहाँ जो ट्रेंच खुदा है या फिर जो भी अपन सैंपल यहाँ से कट किया है, जो पिट है, ठीक है, इस पिट के ऊपर अपन क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे अरेंज करेंगे और उसके ऊपर से अपन इस अरेंजमेंट को रख देंगे, ठीक है। ये कोरिंग कोन हो गया, कोरिंग कोन के अंदर से अब आप इसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सैंड को डालेंगे, स्टैंडर्ड सैंड डालेंगे। स्टैंडर्ड सैंड के अंदर अपन को ये सारी चीजें मालूम होती है, उसका यूनिट वेट क्या है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ठीक है। तो इस मेजरिंग डिवाइस के लिए कंप्लीटली फिल है, ये यदि कंप्लीटली फिल है तो इसमें से इसके अंदर अपन क्या सैंड को डाला, ठीक है। जब अपन ने सैंड को इसके अंदर पोर किया तो इसके अंदर से क्या होगा, वॉल्यूम कम होने लग जाएगा। और ये वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा, एक तो इस पिट के अंतर्गत इतनी सॉइल आई और दूसरा ये कोन के अंतर्गत इतनी सॉइल आई, ये सॉइल अपन को वहां से यहाँ से कम हो जाएगी। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, कौन के वॉल्यूम को अपन, ये फिक्स होता है पहले से ही, ठीक है। तो कौन का वॉल्यूम अलग से मेजर कर लेंगे और अपन देख लेंगे कि स्कोरिंग यहाँ पे कितनी सॉइल को इसके अंदर इंसर्ट किया गया है। तो ये सॉइल जितनी इंसर्ट की है, अपन मेजरिंग डिवाइस से यहाँ जितना वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ से सॉइल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। और जैसे ही अपन को वॉल्यूम मिल जाएगा, वेट अपन पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो यूनिट वेट कैसे आ जाएगा, वेट अपन वॉल्यूम। यदि वही अगेन ड्राई वेट निकालना है तो कोई भी डिटर्मिनेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है, वाटर कंटेंट को उसके अंतर्गत क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अपन यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, सैंड रिप्लेस, जितनी सैंड मतलब जितनी सैंड के वॉल्यूम रिप्लेस सैंड के खाली स्पेस को, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। फोर्थ में, हाँ हो गया। उसके बाद अपन फोर्थ मेथड जो डिस्कस करेंगे वो इतना ज्यादा अपनी गेम के पर्पज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अपन डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन गेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, गेट का ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो कंडीशंस की वो बात करते हैं। फर्स्ट चीज क्या है, एन अर्थन डैम विल हैव वॉल्यूम 5 into 10⁶ मीटर की, ठीक है। एक अर्थन डैम है, उसका वॉल्यूम दे दिया, कोई भी एक डैम होगा तो इस तरह का होगा, मान लीजिए डैम का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इस डैम का टोटल वॉल्यूम है वो दिया हुआ 5 into 10⁶ मीटर क्यूब for a compact soil. The soil is from a borrow pit and will be compacted to void ratio of 0.80। यहाँ से अब है कि कोई अपन ने यहाँ पे पिट खोदा, ठीक है। इस पिट से अपन ने क्या किया, सॉइल को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉइल को लेके आए, यहाँ पे जो सॉइल का जो वॉइड रेशियो है वो क्या है, 0.80। यहाँ पे जो है वो सॉरी वॉइड रेशियो क्या है, 0.80 है। द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन बोरो पिट, यानी कि बोरो पिट यहाँ है, यहाँ से ये पिट है, और यहाँ पे जो इसका जो वॉइड रेशियो है वो क्या है, 1.15 है, ठीक है। देन एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट मस्ट बी एक्सक्वेटेड फ्रॉम द बोरो पिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अबव डैम। तो अपन को यहाँ से कितने वॉल्यूम को अपन को एक्सक्वेट करना है, ठीक है। यहाँ से अपन को कितने वॉल्यूम को क्या करना है, एक्सक्वेट करना है, ये क्वांटिटी अपन को निकालनी है, ठीक है। ये क्वांटिटी निकालने अपन को, देखो यहाँ पे वॉइड रेशियो दिया हुआ है अपन को पिट का, और यहाँ पे वॉइड रेशियो दिया हुआ है अपन को डैम का, और यहाँ पे टोटल क्या दिया हुआ है भाई, वॉल्यूम दिया हुआ है डैम का, यानी इतने वॉल्यूम की जो सॉइल है वो अपन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आनी है। तो इसका एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल होता है। अपन देखो जो सॉइल जो पड़ी थी, ठीक है, ये सॉइल है, ये सॉइल के अंदर अपन ने थ्री फेज डायग्राम पढ़ा, ठीक है। थ्री फेज के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, दूसरा एयर होता है, थर्ड वन है वाटर, सॉलिड वाटर एंड एयर।
तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज कांस्टेंट। चाहे आप पिट की बात करें चाहे यहाँ की, वॉइड जो चेंजेस जो हो रहा है वो चेंज किसके अंदर होता है, सिर्फ वॉइड्स के अंदर का चेंज होता है। ठीक है, तो जब वॉइड्स के अंदर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है वो क्या हो गया, परमानेंटली फिक्स हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि if you want to determine the volume of solid, then you go to that formula, total volume upon 1 upon void ratio plus void ratio. So total solid is total volume upon 1 plus void ratio. अब ये अपन को ये पता पड़ गया कि वॉल्यूम दोनों ही कंडीशन के अंदर फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले को कहाँ यूज करेंगे भाई, अपन को क्या डिटरमाइन करना है, वॉल्यूम ऑफ पिट। तो अपन फॉर्मूले को अपन कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पिट अपॉन 1 प्लस void ratio of pit equals to वॉल्यूम ऑफ डैम, वॉल्यूम ऑफ डैम अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ डैम। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। यहाँ से अपन इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। भाई अपन को डैम का दे रखा है, दोनों ही वॉइड रेशियो दे रखे हैं, तो आप उस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करोगे तो यू कैन फाइंड आउट दैट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली। ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। और ये क्वेश्चन गेट का फेवरेट क्वेश्चन, कई बार आपने जब देखा हो लास्ट ईयर क्वेश्चन जो आप डिस्कस करोगे तो उनके अंदर आपको ये जरूर मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अर्थ इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्वेटेड, अर्थ इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्वेटेड ऑफ ए डैम, earth is required to be excavated from bottom for a building an apartment of height 6 meter with 2 mm and side slope is 1 meter. The unit weight of undisturbed soil sample is 18 kN per meter cube. Wet condition and its natural water content is 8%. The dry density required to arrangement is 20 kN per meter cube with the water content 10%. The explosive rate is 2.5. Estimate the quantity of the earth required to be excavated in the borrow pit to construct 1 meter length of arrangement. If each truck has capacity to 18 km per truck, what is the number of truck load required per meter length of arrangement? Find the porosity and degree of saturation of the metal. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे गेट के हिसाब से। देखिए गेट के अंदर क्या है कि अपने दो मार्क्स के जो आते हैं वो लिंक क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है अपन को 4 नंबर के अंदर ही मिल सकता है लिंक क्वेश्चन के अंदर, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी अपन को गेट के अंदर इस तरह का मिल सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपन को समझ में आना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक अपने बोरोपेट से क्या करना है, सॉइल को खोद के लेके आना है। सॉइल को अपन को यहाँ से एक्सक्वेट करना है और दूसरा अरेंजमेंट बनाना है। अरेंजमेंट कोई सीधा सीधा सा। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, एक बिल्डिंग के अरेंजमेंट के लिए जो हाइट है वो दे रखी है अपन को क्या, 6 मीटर, यानी कि जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6 मीटर। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अरेंजमेंट की जो हाइट है कितनी है, 6 मीटर। ओके, उसके रखिए विड्थ ऑफ 2 मीटर, उसकी विड्थ दी हुई 2 मीटर, विड्थ यानी विड्थ की होगी ऑब्वियसली, विड्थ हो गई 2 मीटर। उसके बाद साइड स्लोप दिया हुआ क्या, 1/1। ठीक है, 1/1। तो सबसे पहले अपन विड्थ लगाया इसका 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद उसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट क्या होगी, इसको इस तरह से एक अरेंजमेंट बना लो। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो हाइट क्या दे दी अपन को, 6 मीटर। हाइट अपन को दे दी इसमें 6 मीटर। उसके बाद जो साइड स्लोप दिया हुआ है, यानी कि ये जो क्या वो दिया हुआ 1/1। देखो अब जैसे अपन को 6 हाइट पे अपन को कवर करना है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन कवर करना है 6, तो इधर भी कितना चले जाएगा, 6 चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम साइड इधर होगा, ये 6 अपन नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में तो 6 हॉरिजॉन्टल में चले जाएंगे और 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, इसकी जो बॉटम का जो बेस हो गया वो कितना हो गया, 6 + 2 + 6 = 14। ठीक है, फिर टोटल जो लेंथ हो विड्थ जो हो गई उसकी 14 और टॉप विड्थ हो गई अपनी 2 मीटर। वही उसने कहा है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद कहा यूनिट वेट ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल, यूनिट वेट ऑफ अनडिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब भाई यहाँ अपन लेके आएंगे तो क्या हो गया, ये तो डिस्टर्ब हो गया। तो अनडिस्टर्ब किस कंडीशन में, इस कंडीशन के अंदर बोरोपिट के अंदर। तो अनडिस्टर्ब की जो डेंसिटी दे रखी है अभी गामा जो दे दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ओके, इसी कंडीशन के अंदर अपन क्या देख रखा है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है 8%। ठीक है, 8% इन्होंने वाटर है।
फिर ड्राई डेंसिटी इन अवेंकमेंट, ड्राई डेंसिटी रिक्वायर्ड अवेंकमेंट, यानी यहाँ पे जो अपन को जो ड्राई डेंसिटी रिक्वायर्ड है क्या दे रखी है, गामा डी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये अपन को यहाँ पे 20 किलो न्यूटन मीटर क्यूब रिक्वायर्ड है विद ए वाटर कंटेंट ऑफ 10%। यहाँ पे जो वाटर कंटेंट दे रखा है वो दे रखा है 10%। ओके, 10% यहाँ पे रखा है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि जी, देखो जी हमेशा क्या रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड होता है तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि चाहे आप बोरोपिट की बात करें चाहे अपन एवेंगमेंट की बात करें, तो कह रहा है एस्टिमेट द क्वांटिटी, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ रिक्वायर्ड टू एक्सपेक्टेड इन बोरोपिट। तो अपन को जो बोरोपिट है, ठीक है, ये जो बोरोपिट है वहां से कितनी मिट्टी को अपन को क्या करना है, एक्सक्यूएट करना है, कितनी मिट्टी को करना है, एक्सक्यूएट करना है, जो कि अपन को वहां पर रिक्वायर्ड मिट्टी को क्या कर दे, फिल कर दे। ठीक है, तो कितनी मिट्टी को अपन को यहाँ से एक्सक्यूएट करना है वो अपन को देखना है, यहाँ से कितनी मिट्टी को अपन को एक्सक्यूएट करके यहाँ पे लेके आना है। और इसकी जो लेंथ दे दी उन्होंने क्या दे दी, 1 मीटर, 1 मीटर की क्या हो गई, लेंथ हो गई। ठीक है, 1 मीटर की लेंथ हो गई। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं भाई, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, टॉप बिट्स यानी कि 2 अपॉन बॉटम बिट्स यानी कि 14 डिवाइड बाई 2 इंटू इसका हाइट। तो हाइट कितना है यहाँ पे 6। ठीक है, ये तो एरिया हो गया और इसके साथ में इसकी 1 मीटर लेंथ इसकी दे दी, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से। इस ट्रेपेजियम का अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम। अब देखो अपन ने जो पढ़ा हुआ था, अभी अपन को जो बेसिक जो कंसेप्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज कांस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन के अंदर अपन ने ये लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम पिट, वॉल्यूम ऑफ पिट अपॉन में 1 प्लस ई पिट, ई पिट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अबैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ अबैंकमेंट अपॉन में 1 प्लस ई अपॉन अबैंकमेंट। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पे वॉइड रेशियो नहीं दिया हुआ है, क्या दी भाई, वॉइड रेशियो इस कंडीशन के अंतर्गत अपन को नहीं दिया हुआ है। और इस केस के अंतर्गत अपन को क्या दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है। इस केस के अंदर अपन को क्या दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है। वो कौन क्या होना चाहिए, 20 इसका ड्राई डेंसिटी है। 20 इसका यदि ड्राई डेंसिटी हो गया तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यदि गामा डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी आर डब्ल्यू 1 प्लस जी आर डब्ल्यू 1 प्लस ई। ठीक है, डेंसिटी अपन को 20 दे रखा है, जी अपने को 2.7 दे रखा है, गामा डी जो होता है क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, वो अपन क्या लेते हैं 9.81 अपन यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ई की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ई की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो आप कैलकुलेट करके देखना है, क्या आएगी 0.324। ठीक है, तो वॉल्यूम वर्ड रेशियो क्या आ गया यहाँ पे 0.302। ठीक है, वहीं यदि मैं इस वॉल्यूम की बात कर रहा था, ये वॉल्यूम क्या है 2 × 4/2 × 6। ओके, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा 48 मीटर क्यूब। वॉल्यूम यहाँ से क्या आ जाएगा 48 मीटर क्यूब, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद अपन को देखो इस कंडीशन की अपन बात करते हैं, गामा फिट यदि अपन को निकालना हो, गामा फिट यदि अपन को निकालना है, तो गामा अपन को दिया हुआ है क्या, गामा फिट 18 दिया हुआ है और वाटर कंटेंट 8% दिया हुआ है। तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो देखो अब मैं एक बार इसको रब करता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा स्पेस कम है, सो सेकंड थोड़ा सा कट रहा है, जस्ट 10 मिनट और तो अभी अपन बात करते हैं फिट के बारे में। ठीक है, तो अभी अपन ने वहां तक तो वैल्यू निकाल ली थी, उसको वैल्यू से निकाल लिया था, अभी तो फिट की बात कर रहे हैं। तो गामा फिट जो अपन को दे रखा है, गामा फिट जो दे रखा है वो अपन को दे रखा है 8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब आपको यहाँ से दिया हुआ है। तो गामा यदि नॉर्मल यदि बल्क अपन निकालते हैं तो बल्क का फॉर्मूला क्या होता है, जी ऐसी, और ऐसी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू जी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला जी प्लस डब्ल्यू जी अपॉन में 1 प्लस ई फिट मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। तो अब हमको यहाँ पे भी सारी वैल्यू रखी है, बल्क की वैल्यू दे रखी है, वाटर कंटेंट अपन को यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जी अपन को दे रखा है, तो ई फिट अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पता है 80 जी को यदि मैं कॉमन ले लूँ तो 2.7 कॉमन,
Here 1 plus water content है 0.8, 8% यानी 0.08, ओके 0.08 लेता है प्लस 1 अपॉन में ई पिट, तो ई पिट यानी कि पिट तो अपन निकालना ही है, ई पिट अपन को निकालना है इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है 9.81, ठीक है। तो यहाँ से अपन ई पिट की निकालोगे यानी कि वर्ड रेशियो फॉर पिट दैट इज 0.589, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये निकाल लिया। तो अब अपन को देखो, अब अपन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट पूछा हुआ है ईच ट्रक हैव कैपेसिटी 18 किलोमीटर पर ट्रिप, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रक लोड रिक्वायर्ड पर मीटर लेंथ ऑफ अरेंजमेंट, ओके। सबसे पहले अपन को देखो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम पिट का सिंपल सा फॉर्मूला होगा, अपने पास दोनों वर्ड रेशियो है, दोनों वर्ड रेशियो अपन को अवेलेबल है, यहाँ प्लस 1 प्लस ई पिट यानी कि टोटल जो सॉलिड है वो तो रहेगा कांस्टेंट, जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला यूज किया था वो अपन यहाँ पर यूज कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ अरेंजमेंट वहां से क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अरेंजमेंट अपॉन 1 प्लस के ई अरेंजमेंट, यहाँ से क्या आ जाएगा ई अरेंजमेंट, यहाँ से डालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ये तो अपन को पता है 48 है, अपन को 48 आ गया था, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0.3 समथिंग आई थी, 0.3 वैल्यू कितनी आई थी 0.34, ठीक है 0.34 यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई थी, अब ये निकालनी है 0.89 0.589 0.589 यहाँ से अपन निकाली, यहाँ से अपन वॉल्यूम ऑफ पिट निकाल सकते हैं, तो यानी कितनी मिट्टी अपन ने एक्सपेक्ट यहाँ से की है, ये अपन को यहाँ से आ जाएगी और वो आ जाएगी 57.6, प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, मेरे ख्याल को हाथ से निकालिएगा तो हो जाएगा, वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो यहाँ क्या बताया, ठीक है। तो अभी अपन को वॉल्यूम ऑफ पिट आ गया, अब वॉल्यूम अपन पिट आ गया तो यहाँ पे जो ट्रक की जो कैपेसिटी थी, ट्रक की कैपेसिटी क्या दी हुई है भाई 18 किलो न्यूटन दी, ठीक है। सीधी सी बात है, यूनिट वेट ऑफ यूनिट वेट क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, यूनिट वेट जो होता है गामा यूनिट की बात करता हूँ, ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं टोटल वेट भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का यूनिट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे डेंसिटी डेंसिटी या फिर यूनिट वेट तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम जो अपना आया 57.6, इसका कर दिया यूनिट वेट से मल्टीप्लाई, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1036, 1036.8, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे, ये आ गया इसका टोटल वेट। अब एक ट्रक की कैपेसिटी कितनी, वन ट्रक कैपेसिटी 18 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, इसको आप फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 12.96 के समथिंग वैल्यू आएगी, तो क्या हो गया 13 ट्रक आपको रिक्वायर्ड होंगे इस सॉइल को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं फाइंड द पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑन द अवेलेबल, ठीक है। फाइंड द पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो यू कैन आल्सो फाइंड पोरोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या आता है n इक्वल्स टू ई 1 प्लस ई, अब अरेंजमेंट की कंडीशन में पूछा है, अरेंजमेंट कंडीशन अपन को वर्ड से पता है 0.034 है, तो आप यहाँ से पोरोसिटी निकाल सकते हैं। फिर आपको यदि डिग्री पूछा है तो ऐसी इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, ऐसी इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, भाई वर्ड से अपन को फाइंड आउट कर लिया अपने, वाटर कंटेंट 10% दे रखा है, दे रखी है, से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये पता होना चाहिए इंडेक्स प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। तो कोई भी एक सॉइल है उसके ये बारे में यदि अपन को कुछ पता लग जाए, ठीक है, उसके बारे में अपन कुछ को जानकारी निकाल लें और उससे अपन सॉइल को आइडेंटिफाई कर लें, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। इफ यू नो अबाउट द सॉइल सम प्रॉपर्टीज लाइक वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, void ratio, then you can identify the soil, that is called index property of soil। अब index property दो पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक तो सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज होती है जो कि उसके होल मास के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कोई लंप है उसका तो वॉइड रेशियो क्या हो गया, उसकी पोरोसिटी क्या होगी, उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा होता है सॉइल के ग्रेन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, यानी कि सॉइल के जो इंडिविजुअल पार्टी उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे क्या हो गया सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन सॉइल ग्रेन साइज, ओके। तो सॉइल ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग कैसे डिपेंड करेगी भाई, तो पर्टिकुलर अपन ने क्या लिया, कोई भी एक पार्टिकल को ले लिया, ठीक है, कोई भी पार्टिकल को अपन ने यदि ले लिया तो वहां से अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सॉइल गेन की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो पर्टिकुलर पार्टिकल की उसकी शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लक्चुएटेड है, इस तरह का स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल अपन पार्टिकल ग्रेन की अपन
तो वहां से भी अपन इंडेक्स प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रेन साइज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस तरह के पार्टिकल्स अपनी सॉइल के अंतर्गत प्रेजेंट है। बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स उसके अंतर्गत प्रेजेंट हैं या फिर बहुत ज्यादा कोर्सर पार्टिकल उसके अंतर्गत प्रेजेंट है। ठीक है, इस बारे में भी अपन उसको पढ़ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन सॉइल को क्या करते हैं, ग्रेड। ठीक है, जैसे कोई सॉइल है वो वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड मीन्स क्या होगा, इस सारे साइज के पार्टिकल्स उस सॉइल के अंतर्गत क्या है, प्रेजेंस है। डेप्थ ग्रेडेड मतलब पर्टिकुलर कोई शेप का पार्टिकल वहां पे मौजूद नहीं है, तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सेपरेट आउट सॉइल इनटू अ डिफरेंट फ्रैक्शन बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, या फिर अपन सॉइल के फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपन सॉइल पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। जैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स के साइज हैं, जैसे बोल्डर्स हो गए, कोबल्स हो गए, है ना, कोबल्स हो गए, उसके बाद बोल्डर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद अपन क्या हो गया, बोल्डर्स हो गए, कोबल्स हो गए, ग्रेवल हो गया, ग्रेवल के बाद सैंड आ गया, सिल्ट आ गया, क्ले आ गए, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स। तो अपन साइज के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। 2 माइक्रोन से लेस देन है तो क्ले हो गया, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन सिल्ट हो गया, 75 से 4.5 तक सैंड हो गया, उसके ऊपर ग्रेवल हो गया, ठीक है, उसके ऊपर बोल्डर्स हो गया, उसके बाद में कोबल्स अपन आएंगे। ठीक है, तो ये भी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साइज की अपन बात करें, सबसे पहले अपन क्ले की साइज की अपन बात करें तो 2 माइक्रोन से लेस देन 2 माइक्रोन क्ले हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइक्रोन से लेके और 75 माइक्रोन की अपन यदि बात करेंगे, ठीक है, 75 माइक्रोन की यदि अपन बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। और वहीं अपन बात करें 75 माइक्रोन से लेके 4.7 mm, ठीक है, 4.75 mm की यदि अपन बात कर रहे हैं तो वो सेंड हो जाएगा। यदि अपन बात करते हैं तो 4.75 mm से लेके 20 mm तक, यहाँ 80 mm तक अपन, ठीक है, इसके अंदर जो फर्दर पार्ट है वो अपन आगे पढ़ेंगे। यानी 4.75 mm से लेकर 80 mm तक का जो साइज होगा वो ग्रेवल का रहेगा। 80 to 300 की अपन बात करें, 80 mm to 300 mm की यदि अपन बात करें तो वो कोबल्स हो जाएंगे। और मोर देन 300 mm है तो वो अपन को क्या होते हैं, बोल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन साइज के अकॉर्डिंग सॉइल के अपन ने पार्ट्स कर लिए। ठीक है, तो अब अपन को देखो ग्रेन साइज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम कुछ एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपन कुछ एनालिसिस करेंगे। देखो अभी जो अपन ने जो ये पढ़ा था, हाँ, ये ग्रेन साइज, ठीक है, तो मेनली जो अपना जो कंसर्न रहेगा, वो यहाँ रहेगा के अंतर्गत। ठीक है, तो मेन जो सॉइल के अंदर जो कंसर्न रहता है वो सैंड सिल्ट और क्ले के अंतर्गत रहता है। बाकी की जो ग्रेवल वगैरह वाली पार्ट है वो अपने एग्रीगेट की टर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अपना सॉइल का जो कंसर्न रहेगा वो यहाँ रहेगा। तो अब अपन इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का अपन यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो देखो फोर्स ग्रेन एनालिसिस जो होता है, फोर्स ग्रेन एनालिसिस अपन करते हैं यदि पार्टिकल की साइज जो अपनी है वो 75 माइक्रोन से क्या है, ग्रेटर है। क्या है भाई, 75 माइक्रोन से ग्रेटर है तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, सीव एनालिसिस। यदि वही पार्टिकल साइज क्या हो जाती है, 75 माइक्रोन से लेस हो जाती है। ठीक है, सॉरी, लेस देन 75 माइक्रोन हो जाती है तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर रहे हैं। अभी अपन दोनों एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो वो भी सीव एनालिसिस। ठीक है, सीव एनालिसिस अपन कर रहे हैं तो अपने सबसे पहले अपन को समझना जरूरी है सीव एनालिसिस करते क्या है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी फोर्स सीव है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद फाइन, उसके बाद फाइन, उसके बाद फाइन, इस तरह से सॉइल को रखते चले जाते हैं। लास्ट के अंदर क्या होता है, एक पान रख देते हैं। पान क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी इस तरह से ओपनिंग नहीं होती। ठीक है, इस तरह का एक अरेंजमेंट अपन इसके अंतर्गत मिलके चलते हैं। ठीक है, इस तरह का अपन ने एक अरेंजमेंट लिया। इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे पर्टिकुलर सीव है अपनी, ये सीव है, ठीक है, ये 80 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 है। ठीक है, ये सारी जो सीव है इसको अपन ने एक डिसेंडिंग, या तो आप ऊपर से आ रहे हो तो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, या फिर अपन फैन की तरफ से नीचे की तरफ से जा रहे हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो, इसके अंतर्गत हो गया सॉइल को अरेंज किया। लेट अस फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे 100 ग्राम सॉइल सैंपल लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 100 ग्राम सॉइल सैंपल को लिया और वो सीप के अंतर्गत डाल दिया। तो मैंने यहाँ से देखा कि जो 40 ग्राम जो सॉइल है वो अपनी क्या हो गई, 80 mm की सीड है उसके ऊपर रिटेन हो। ठीक है, 80 mm सीड के ऊपर 40 ग्राम सॉइल क्या हो गई, रिटेन हो गई। उसके बाद 60 ग्राम जो सॉइल है वो यहाँ से पास हो गई। ठीक है, 60 ग्राम सॉइल यहाँ से पास हो गई। 40 टोटल 100 है, टोटल 40 ग्राम तो क्या हो गया, रिटेन हो गया, 60 ग्राम क्या हो गया यहाँ पे पास कर गया। तो अपन सेकंड सीप की बात है तो 30 ग्राम पर्टिकुलर इस सीप के ऊपर क्या हो गया, रिटेन हो गया।
तो यानी कि 40 यहाँ से रिटेन हो गया, 30 यहाँ रिटेन हो गया, तो पास कितना करेगा, 30 ग्राम यहाँ से पास हो गया। उसके बाद अपन ने बात करी 10 ग्राम यहाँ पे रिटेन हो गया, ठीक है, 20 ग्राम नीचे की तरफ पास कर गया। उसके बाद 4.75 mm पे भी 10 ग्राम यहाँ पे रिटेन हो गया और 10 ग्राम पास कर गया। देखो अपन ने यहाँ से जो देखिए जो टोटल जो 100 ग्राम सॉइल थी उसमें से 40 ग्राम यहाँ रिटेन हुआ है, 30 ग्राम यहाँ पे रिटेन हुआ है, 10 ग्राम यहाँ पे रिटेन हुआ है और 10 ग्राम यहाँ पे रिटेन हुआ है, ठीक है। तो ये अपन ने अलग अलग सॉइल का कम्युनिटी अपन इसको निकालेंगे। अब उसका पर्टिकुलर जो सॉइल है उसको अपन वेट निकालेंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ अपन ने वेट निकाला और सारी सॉइल की अपन ये टेबल बना लेंगे। भाई यहाँ पे अपन टेबल बनाएंगे, ठीक है, कि भाई यहाँ पे सीट की साइज लिख देंगे, 80 mm हो गया, 40 mm हो गया, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कितना वेट रिटेन हो गया, उसके बाद कम्युनिटी वेट कितना रिटेन, ठीक है। जैसे अपन ये सारी वैल्यू निकाल। इसके अलावा अपन 3 टर्म यहाँ पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन कोई भी एक सॉइल की बात करें तो सॉइल का जो इफेक्टिव साइज होता है वो अपन मान के चलते हैं D10, ठीक है। तो D10 क्या है, D10 का एक पर्टिकुलर सीड का साइज हो गया। जैसे जब यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ 4.75 mm की जो सीड है, इससे क्या हो गया, 10 पार्टिकल पार्टिकल्स हैं वो क्या कर गए, पास कर गए, ठीक है। 10 पार्टिकल पार्टिकल यहाँ से क्या कर गए, पास कर गए। तो ये क्या हो गया अपना D10 हो गए। इन 10 पार्टिकल जिस साइज से क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, इफेक्ट होता है, या फिर D10। वहीं यदि मैं D60 की बात करूँ तो D60 क्या होगा, तो ये जहाँ से 60% जो पास जो सॉइल है वो क्या कर रहे पास करे। तो यहाँ पे अपन देखा 80 mm की जो सीड है उससे क्या हो गया, 60 ग्राम जो सॉइल है वो यहाँ से क्या कर चुकी है भाई, पास कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर D60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 80 mm, ठीक है। तो 80 mm यहाँ से क्या हो जाएगी, D60 की वैल्यू हो जाएगी। तो D60 की वैल्यू 80 mm। इसी तरह यदि अपन यहाँ D30 की वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहें, D30 की वैल्यू भी अपन फाइंड आउट करना चाहें तो वो साइज क्या होगी, यानी वो है जिससे अपन का 30% जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। यानी कि अपन यहाँ देखा जो 20 mm की जो सील है वो क्या होगी, अपनी वैल्यू ऑफ D30, वैल्यू ऑफ D30 दैट इज 20 mm। यहाँ से अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, D10 क्या हो गया, D30 क्या हो गया, D16 क्या हो गया, ठीक है। तो अपन ने यहाँ 100 mm दिया था। अब देखा अपन वेट पासेस फ्रॉम 80 mm दैट इज 60 mm दैट इज D10 साइज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 80 mm की सीरीज है उससे 60% पार्टिकल्स वो क्या है, फाइनर है, ठीक है। तो सेकंड जो अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ा था अपन ग्रीन साइड डिफ्यूजन की अपन बात कर रहे थे ग्रेडेशन के अंदर। हाँ, लेट अस अज्यूम आप से कोई सॉइल है और उसके सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब अपन के पास अपन को दिख रहा है पार्टिकल है वो क्या देख रहे हैं अपन को, सेम साइज के देख रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स की साइज है वो क्या है, सेम है, सारे पार्टिकल्स की साइज क्या है, सेम है। तो ये सॉइल अपनी क्या कहलाएगी, तो देखो जिसके सेम होती है इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो दैट सॉइल इज यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल, या फिर अपन इसको कह देते हैं ओवरली ग्रेडेड। ओवरली ग्रेडेड क्यों कहते हैं उसका भी अपन आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और overly graded क्या होता है। तो बस अपन को यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो सारे पार्टिकल्स की जो साइज है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा, सॉइल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। सेकंड केस अपना ये आता है कि अपने पास सारे पार्टिकल्स की साइज है, पार्टिकल्स बहुत बड़े साइज के, फिर उनसे कुछ लेसर हैं, फिर उनसे कुछ लेसर हैं, फिर उनसे कुछ लेसर हैं, फिर उनसे लेसर। और इस तरह से अपने पास क्या है, सारे पार्टिकल के साइज यहाँ से अवेलेबल है। यानी कि अब अपने पास यदि कोई शॉप है तो यानी कि अपने पास सारे आइटम अवेलेबल है, छोटे से छोटा आइटम मिल जाएगा, बड़े से बड़ा आइटम मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास एक बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी मतलब सॉरी क्वांटिटी में सारी चीजें अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेल ग्रेडेड हो गई, वेल ग्रेडेड यानी अच्छी तरह से ग्रेडेड है, हर चीज अपने पास अवेलेबल है, हर तरह के सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो अपनी इस सॉइल के अंतर्गत प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया भाई, नॉन यूनिफॉर्म। अब ये यूनिफॉर्म तो नहीं रहा, नॉन यूनिफॉर्म तो क्या कहेंगे, वेल। तो अपन को यहाँ से क्या रखना है, यूनिफॉर्म ग्रेडेड, यहाँ से अपन को वेल ग्रेडेड। अब अपने पास क्या हुआ भाई, अपने पास बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2000 का नोट है, 500 का नोट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 100 का नोट नहीं है, 200 का नोट नहीं है, सीधे सीधे समाज करेंसी है, 100 का नोट नहीं है, 200 का नोट नहीं, फिर अपने पास क्या 10 का है, 5 का है, 1 का। तो पर्टिकुलरली अपने पास क्या हो गया, गैप हो गया, यानी कि इस तरह के सॉइल से पार्टिकल्स नहीं है। यानी कि अपने पास बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, या फिर उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर अपने को वेरिएशन है, लेकिन अपन के पास मीडियम साइज में अपने पास कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या हो गया, यहाँ पे गैप हो गया। इसको अपन क्या कह देते हैं भाई, गैप गैप ग्रेडेड साइज। तो यहाँ से अपन जो ग्रेडेशन को देखा वो 3 तरह से हो गया, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, इसके अंदर सेम पार्टिकल साइज होंगे, एक नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडेड या फिर वेल ग्रेडेड जिसके सारे पार्टिकल्स अपने सारी साइज के अपने पास अवेलेबल रहेंगे। और एक होता है जो पर्टिकुलर साइज अपने पास क्या रहे, एब्सेंट रहे, उसको अपन क्या कह देते हैं, गैप ग्रेडेड सॉइल, सॉरी।
तो देखो लास्ट में अपन ने देखा था इफेक्टिव साइज क्या होगी, D10 हो गई थी। ठीक है, यहाँ से ये दो टर्म्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी क्लासिफिकेशन के लिए। एक आता है अपना यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट। क्या होता है भाई, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट। इसकी जो अपन वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी, तो वो वैल्यू क्या होगी, D60 अपॉन में D10। D16 क्या है कि ऐसी पर्टिकुलर सीड की साइज जिससे क्या होगा 6% पार्टिकल्स हैं क्या है, फाइनर है, तो वो क्या हो जाएगा D16। और ऐसी कोई पार्टिकल सीड की साइज जिससे अपन क्या है 10% जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है अपने लेसर है। ठीक है, तो वो क्या होगी अपनी यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, देन D60 अपॉन D10 अपन यहाँ से निकालेंगे, तो वो अपना क्या हो जाएगा भाई, D60 D10। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया क्या, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। D60 अपॉन D10 अपन यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है अपनी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी क्या होता है, D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 अपॉन D10। अब D30 भी क्या है, D30 इज द इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल दैट लेसर देन, यानी कि 30% पार्टिकल्स हैं उससे क्या कर गए, पास कर गए। इनके अकॉर्डिंग अपन कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्म, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू सी यू एंड सी सी अपन सॉइल को क्लासिफाई, सी यू की जो वैल्यू है, ठीक है, सी यू की जो वैल्यू है ये वैल्यू greater than 4 आ रही है। If the uniformity coefficient is greater than 4, then soil is called well graded soil। ठीक है, well graded soil। इसके अंदर भी दो क्राइटेरिया होते हैं। अपन यदि ग्रेवल की बात करते हैं, ग्रेवल के अंदर जो सी की जो वैल्यू है, अपन ग्रेवल की बात, ये अपन बात करते हैं ग्रेवल की, तो ग्रेवल के लिए सी की जो वैल्यू है वो मोर देन कितनी होनी चाहिए, और सैंड की अपन बात करते हैं तो सी की वैल्यू 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात अपने क्या कर, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के अपन ने बात कर रही है यहाँ से। फिर अपन सेकंड जो टर्म आता है सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यदि अपन को निकालना है, उसकी वैल्यू यदि 1 3 है, वन 1 से 3 के बीच में है, तो वो सॉइल क्या होगी, वेल ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखा, सीसी देखा, सीसी की वैल्यू यदि 1 से 3 के बीच में आ रही है, तो इसमें मतलब क्या होगा, सॉइल जो है अपनी क्या है, वेल ग्रेडेड सॉइल है। वहीं यदि सी यू की वैल्यू अपन फाइंड करें सैंड के लिए, तो सैंड यदि वेल ग्रेडेड कब होगी, जब सी यू की जो वैल्यू है, सी यू की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 6 रहेगी। और यदि ग्रेवल वेल ग्रेडेड कब रहेगा, जब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मोर देन 4 रहेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको यहाँ याद रखनी है। उसके बाद ये तो अपना हो गया कोर्स एनालिसिस। उसके बाद अपन बात करते हैं फाइन एनालिसिस। ठीक है, तो फाइन एनालिसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, फाइन जो सॉइल है उसके लिए अपन एनालिसिस करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंतर्गत मेनली दो मेथड अपन यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंतर्गत दो मेथड यूज करते हैं। एक मेथड होता है अपना, सेकंड होता है ना हाइड्रोमीटर। ठीक है, इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले हमने एक बकेट लिया, बकेट के अंदर अपन ने क्या किया, वो सॉइल को डाल दिया। बकेट के अंदर अपन सॉइल को डाल दिया और इसको प्रॉपर स्टीर किया। ठीक है, इसको हिला के पूरा मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में अपन क्या करेंगे कि यहाँ से अपन कुछ हाइट बाद, ठीक है, यानी एच हाइट बाद में अपन यहाँ से एक पेपेट की हेल्प से क्या लेंगे, एक सैंपल लेंगे। ठीक है, पेपेट की हेल्प से क्या लेंगे, यहाँ पे एक सैंपल लेंगे, और वो सैंपल जो अपने लिया है वहां से अपन निकालेंगे पार्टिकल्स कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से इसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, वो अपन यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे एक चीज। और ये अपन क्या कर रहे हैं, एच हाइट से अपन सैंपल ले रहे हैं और टी टाइम बाद ले रहे हैं। मान लीजिए मैं 10 mm अंदर से अपन सॉइल कर ले रहा हूँ और उसके बाद 25 मिनट के बाद में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपन को पहले देखना है क्या करना है, एक जो सैंपल लेना है वो पूरी तरह से स्टीर किया, उसने पूरी तरह से मिक्स किया, एक तरह सैंपल ले लिया, और अपन ने उसकी कंटेंट निकाली। एक अपन टी टाइम बाद एच हाइट से अपन क्या ले लिए, सैंपल ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, सॉइल के पार्टिकल का पता यहाँ से हमको लग जाएगा। ठीक है, मतलब रेडिएशन का पता लग जाएगा, उसके अंदर कितना ग्रेडियंट है पार्टिकल साइज। अब कैसे निकालते हैं, परसेंटेज फाइनर देंगे, कंसंट्रेशन हाइट ऑफ एस टाइम टी और ओरिजिनल कंसंट्रेशन, यहाँ से पता लग जाएगा परसेंटेज फाइनर दें डी, पार्टिकल फाइन है। डी क्या होगा, पर्टिकुलर साइज होगी जिस पार्टिकल की अपन एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, प्रत्येक मेथड जो है साइड स्टॉक फ्लो के, इसके ऊपर बेस होता है, स्टॉक फ्लो के ऊपर बेस होता है, जो अपन एफएम के अंतर्गत ही पढ़ते हैं स्टॉक। ठीक है, और स्टॉक फ्लो की वैल्यूडिटी क्या होती है, स्टॉक फ्लो है जो
0.2 माइक्रोन, ठीक है, क्या होता है 0.2 माइक्रोन और 0.2 के जो पार्टिकल्स उनके बीच में ही क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। यदि पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.2 तो ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, अपन स्टॉक फ्लो को नहीं लगा सकते हैं, और 0.2 माइक्रोन से कम है तो भी अपन इस मेथड को नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? वो यदि 0.2 माइक्रोन से साइज कम होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राउनियन मोशन के अंदर, इसके अंदर होते हैं, ब्राउनियन मोशन के अंदर होते हैं। जैसे आपने आप कभी देखा होगा कि कई बार आपके रूम के अंदर खिड़की से धूप आती है, ठीक है, धूप के अंदर आपने देखा होगा कि किरण वहां से आ रही है, ये जाती है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको बहुत जल्द दिखेंगे, मोशन के अंदर रैंडम मोशन उसमें होता है, ठीक है। वहीं यदि 0.2 की बात कर दे तो उसका क्या, उसकी ब्यूटी की बात हो जाएगी, उसकी डिस्क्रीट सेटलिंग नहीं होती, उसकी डिस्क्रीट सेटलिंग नहीं होती है, इस वजह से अपन कहते हैं 0.2 कंसीडर नहीं करके, ठीक है। तो अभी अपन ने पिपेट मेथड है, ये किसके अंदर आता है, सेगमेंटेशन एनालिसिस के अंदर आता है। फाइन एनालिसिस, फाइन सॉइल के अंदर अपन एनालिसिस करते हैं। फाइन सॉइल क्या है, क्ले और सिल्ट, क्योंकि 75 माइक्रोन के लिए पूर्ण क्या थी अपनी, क्ले, सॉरी सिल्ट, और 2 माइक्रोन से जो लेस थी वो क्या थी अपनी, सिल्ट थी, ठीक है। तो अब ये अपन का स्टॉक फ्लो था, अपन को ये क्या टर्मिनल वेलोसिटी अपन निकालते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी जिसको कहते हैं, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी जब इसको कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो उसको अपन क्या निकाल सकते हैं, तो अपन ये इसमें एच हाइट डिस्टेंस देखी और टी टाइम के अंदर रखी, एच तो क्या होगी, इसकी हाइट होगी, तो इसका टाइम हो गया, ठीक है। और तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, अगर अपन से साइक्लिंग वेलोसिटी भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन मान के चलते हैं सेटलिंग है वो इंडिविजुअल पार्टिकल की, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लब होकर स्फीयर के नीचे जा रहे हैं, ठीक है। इसको अपन डिस्क्रीट सेटलिंग इसके अपन एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पिपेट एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ तक जो अपन पढ़ा था, एक वाटर कंटेंट मेथड्स पढ़े, दूसरा अपन डिटरमिनेशन पढ़ा, और तीसरा अपन पढ़ा पार्टिकल साइज का ग्रेन साइज एनालिसिस अपन ने पढ़ा, ठीक है। वैसे तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, तो बेसिकली कंसिस्टेंसी किससे रिलेटेड है, तो फाइन ग्रेन सॉइल से रिलेटेड होती है, और वो किसको डिनोट करती है, रेफर्स करती है सॉइल की फर्मनेस। फर्मनेस का मतलब क्या होता है, उसको इजीली किसी की चीज के अंदर मोल्ड करना हो या इस तरह से, तो उससे रिलेटेड होती है फर्मनेस, ठीक है। तो इट वेरीज विद वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, कंसिस्टेंसी है वो क्या होती है, सॉइल की पार्टिकल जो वाटर है उसकी अपन लिमिट के अकॉर्डिंग क्या करती है, वेरी करती रहती है, जैसे मतलब प्रॉपर्टीज की चेंज होती रहती है फर्मनेस की, जैसे सॉलिड है उसमें थोड़ा सॉइल मिला दिया तो प्लास्टिक हो जाएगी, उसके बाद उसके अंदर वाटर कर दिया तो क्या हो जाएगी, लिक्विड की टॉप की तरह भी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है इसके वाटर कंटेंट के ऊपर, वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या, फर्मनेस से रिलेटेड है, और ये बहुत वाटर से बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे अब अपन मानो कि इसके ऊपर सॉइल के वाटर का जो सॉरी वाटर का जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से कंसिस्टेंसी सॉइल के, मान लीजिए सॉइल है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स है, और इसके अंदर ये मान लिया कि एयर वर्ड्स है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एयर वर्ड्स है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर यदि वाटर को इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, वाटर है वो एयर के कंपेरिजन में क्या होता है, हैवी होता है। तो वाटर है एयर के कंपेरिजन में क्या होता है, हैवी होता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो एयर है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से जो एयर है उसको क्या कर देगा भाई, डिस्प्लेस कर देगा। पहली जो कंडीशन आएगी, जैसे अपन मान लिया कि सॉइल सैंपल लिया, फर्स्ट में अपने सॉइल सैंपल लिया और वो सॉलिड कंडीशन के अंदर, यानी कि उसके अंदर एयर है, ठीक है। अब जो अपन ने इसके अंदर क्या किया, जैसे जैसे अपन ने वाटर कंटेंट को इंक्रीज किया, तो वाटर कंटेंट इंक्रीज तो एयर को रिप्लेस कर देगा, और एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी पूरी तरह से जो एयर है, पूरी तरह से जो एयर है वो क्या करेंगे, सॉइल रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है सॉलिड कंडीशन, ठीक है। वो कंडीशन क्या होती है, सॉलिड कंडीशन। देखो अभी यहाँ जो अपन ने वाटर का इंक्रीज किया है, इसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम के अंतर्गत कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इनिशियली वॉल्यूम यही था, अभी भी वॉल्यूम यही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत पूरे जो एयर है पूरी तरह से रिप्लेस हो गए किससे, वाटर से, और वो वाटर कंटेंट अपनी क्या कहलाती है, श्रिंकेज लिमिट कहलाती है, क्या कहलाती है, श्रिंकेज लिमिट कहलाती है, श्रिंकेज लिमिट। देखो इसके ऊपर यदि अपन अब देखो इसके जो वॉइड्स हैं, इसके जो वॉइड्स हैं पूरी तरह से कंप्लीटली फिल हो चुके हैं यहाँ पे इस कंडीशन। अब इसके बाद फर्दर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर यदि वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, अलग से वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाएगा। जो पहले जो वर्ड्स थे वो एयर के वाले पूरे फिल हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स बाहर जाने वाले है नहीं, उसमें क्या होगा, अब इसका क्या होगा, वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, उसके बाद में सॉइल क्या हो जाएगी, अपनी प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाएगी, ठीक है। यहाँ सॉलिड हो गया, जो पूरा सेकंड में पार्ट होगा वो क्या हो गया, सॉलिड, यानी कि एक मिनिमम वाटर कंटेंट जिससे सॉइल मेरी क्या करे, प्लास्टिक की तरह बिहेव करे, यानी उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आया तो वो अपनी पुरानी कंडीशन
कर नहीं आ रही, डिफॉर्म भी हो गई, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, यदि कोई एक्शन लोड लगाया उसको रिमूव कर दिया तो वो अपनी पुरानी कंडीशन में आ गया तो इलास्टिसिटी हो जाता है, यदि कंडीशन में नहीं आया तो क्या होगा, प्लास्टिक कंडीशन होगी। तो एक मिनिमम वाटर कंटेंट जिसके ऊपर सॉइल जो है मेरी क्या करे, प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाए, तो वो अपनी क्या कहलाती है, प्लास्टिक लिमिट। यानी ये वाटर कंटेंट है वो अपनी क्या कहलाएगी, प्लास्टिक लिमिट, क्या कहलाएगी, प्लास्टिक लिमिट। उसके बाद अपन फर्दर यदि वाटर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फर्दर अपन क्या कर रहे हैं, वाटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी अगेन बढ़ता जाएगा, उसके बाद वॉल्यूम और ऐड करते जा रहे हैं, वाटर को ऐड करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। और उसके बाद एक वाटर कंटेंट ऐसी मिलेगी जिसके ऊपर क्या होगा, सॉइल जो है मेरी क्या करेगी, लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाएगी, ठीक है, लिक्विड की तरह क्या करने लगेगी, बिहेव करने लग जाएगी। और जिस लिक्विड मतलब जिस लिमिट बाद में जो सॉइल मेरी क्या कर रही है, लिक्विड की तरह बिहेव कर रही है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, अपन लिमिट, यानी पर्टिकुलर एक वाटर कंटेंट की वो लिमिट जिसके बाद जो सॉइल है मेरी क्या करते हैं, लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाए तो वो क्या होगी, अपनी लिक्विड लिमिट कहलाएगी, ठीक है, तो ये अपनी क्या होगी, लिक्विड लिमिट होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कंसिस्टेंसी को डिफाइन करते हैं, ठीक है? और इसके बारे में अपन और आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, तब अपन और देख लेंगे। तो अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। देखो देखो अपन ने यहाँ पे तीन लिमिट के बारे में बात करी, तीन लिमिट की कहाँ बात करी, एक जो लिमिट थी उसके बाद में क्या हुआ था, सबसे पहले सॉइल सैंपल लिए, ठीक है, इसके अंदर अभी वाटर कंटेंट 0 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V है, ठीक है, इसके अंदर वाटर को ऐड किया तो सबसे पहले क्या हो गया, इसके अंदर जो ईयर वर्ड्स थे, इसके अंदर जो ईयर वर्ड्स थे वो क्या हो गए, वाटर से फिल हो गए, जो ईयर थे वो वाटर से क्या हो गए, फिल हो गए। तो ईयर वर्ड्स वाटर से फिल हो गए तो उस कंडीशन को अपन ने कहा क्या कहा, जो कंप्लीटली ईयर रिप्लेस हो गई विद वाटर, तो वो कंडीशन हो गई फुली सेचुरेशन वाली कंडीशन हो गई, और उसी लिमिट को अपन क्या कह देते हैं, श्रिंकेज लिमिट उसको अपन कह देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं भाई, श्रिंकेज लिमिट उसको अपन बोल देते हैं, ठीक है, तो श्रिंकेज लिमिट हो गई। उसके बाद अपन ने फर्दर इसके अंदर यदि वाटर को ऐड किया, उसके बाद अपन ने क्या किया, फर्दर यदि वाटर को ऐड किया तो वो लिमिट क्या होगी इसकी, वो लिमिट क्या कहलाती है इसकी, प्लास्टिक लिमिट। बस जिस आदमी यहाँ से अपन ने बात की वाटर को तो इंक्रीज करते हुए चले गए, तो ये अपना जो हो गया, ये पोर्शन जो हो जाएगा वो सेमी सॉलिड कंडीशन में रहेगा, थर्ड जो रहेगा प्लास्टिक कंडीशन में रहेगा, फोर्थ वन क्या रहेगा, उसके बाद प्लास्टिक के ऊपर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद साइड क्या करेंगे, एज ए लिक्विड की तरह क्या करने लग जाएगी, बिहेव करने लग जाएगी, ठीक है, लिक्विड की तरह क्या करने लग जाएगी, बिहेव करने लग जाएगी। तो वो लिमिट इसकी क्या हो गई, लिक्विड लिमिट हो गई, ठीक है, तीनों लिमिट हो गई, यहाँ से श्रिंकेज लिमिट हो गई, प्लास्टिक लिमिट हो गई और लिक्विड लिमिट हो गई। द वैल्यू ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेन बाय वेरियस मेथड, और इसके बहुत सारे मेथड्स अपन इसके अंतर्गत निकालने वाले हैं, जैसे लिक्विड लिमिट को अपन निकालने के लिए अपन कासाग्रांडे करते हैं, कौन पेनिट्रेशन मेथड भी अपन यूज करते हैं, यूज कर लेते हैं, प्लास्टिक लिमिट के लिए अपन थ्रेडेड बनाते हैं, ठीक है। और अपन ने क्या देखा था, ये जो लास्ट में डायग्राम देखा था इसके अंतर्गत यदि मैं क्या करूँ, लिक्विड लिमिट यानी कि डब्ल्यू एल में से डब्ल्यू पी को यदि मैं माइनस कर दूँ, क्या कर दूंगा, डब्ल्यू एल में से यदि मैं क्या करूँ, डब्ल्यू पी को माइनस कर देता हूँ तो ये टर्म क्या दिखाती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को शो करती है, इसको शो कर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को शो करती है, ठीक है। तो sorry, ठीक है, तो ये टर्म हो गई। अब जैसे लिक्विड लिमिट क्या होगी, द चेंज इन कंसिस्टेंसी फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड। अभी अपन का जो सॉइल है उसमें वाटर कंटेंट को क्या किया, अब डिक्रीज किया तो क्या होगा, प्लास्टिक से लिक्विड हो जाएगी, फिर डिक्रीज किया लिक्विड से प्लास्टिक हो जाएगी। इसी तरह चेंज कंसिस्टेंसी फ्रॉम ब्रिटल क्रम्बली टू द प्लास्टिक स्टेट, यानी कि प्लास्टिक लिक्विड क्या होता है, ऐसी वाटर कंटेंट जिसके ऊपर अपन क्या थ्री, ऐसी वाटर कंटेंट जिसके ऊपर अपन सॉइल के क्या 3 mm के थ्रेड यदि बना पा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी, सॉरी प्लास्टिसिटी लिमिट कहलाती है, उस पर्टिकुलर वाटर में प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। और यदि इन दोनों का डिफरेंस अपन निकाले, लिक्विड लिमिट का प्लास्टिक लिमिट का, तो क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। अब लिक्विड लिमिट के डिटर्मिनेशन के दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, एक तो अपना होता है कासाग्रांडे एपरेटस और दूसरा होता है कोन पेनिट्रेशन मेथड। क्या होता है, कोन पेनिट्रोमीटर, ठीक है, फिर कोन पेनिट्रेशन मेथड भी अपन इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपन कासाग्रांडे मेथड की अपन बात करते हैं, तो देखो ये होता है कासाग्रांडे एपरेटस, इसके अंतर्गत ये टूल होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रूविंग टूल्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ग्रूविंग टूल होते हैं, ये बकेट होता है, इसके अंदर अपन एक सॉइल लेंगे, ठीक है, ये इसका एक हैंडल हो गया, इस हैंडल की वजह से अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर इसको उठा के क्या करेंगे, टिप करेगा, ये रबड़ का, यहाँ जो रबड़ का बेड होता है ऊपर ये टिप करेगा। और आपने क्या किया, इनिशियल कंडीशन में इसको फुल किया, उसके बाद ग्रोविंग टूल की हेल्प से इसको अप्रोक्सीमेटली 11 mm डेप्थ तक इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है, उसका जो साइज रहेगा वो 2 mm का कट रहेगा। तो जैसे जैसे अपनी डिप करेगा, ये जो पार्टिकल इसके ऊपर डिप करेगा तो ये क्या करेगा, दोनों आपस में आके मिल जाएंगे, जो अपन ग्रोथ कट किया है वो क्या करेगा, बाद में एक साथ मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो
देखो अब अपने जैसे कि इसके अंदर कुछ भी सॉइल कंटेंट मतलब पहले कुछ परसेंट में वाटर रहा रहा होगा, ठीक है, वाटर कंटेंट रहा। उसके बाद मान लीजिए अपन जैसे कि 35 ग्रुप के बाद ये क्या हुआ, मतलब 35 ग्रुप के बाद क्या हो गया, मैच कर गया। उसके बाद यदि अपन वाटर में ज्यादा किया तो मान लीजिए 20 के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन निकालें वह पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जिसके ऊपर नंबर ऑफ ब्लो कितने रहे, 25 रहे, नंबर ब्लो कितने रहे भाई, 25 ब्लो यदि रहे, तब ये क्या कर जाए, एक दूसरे को बीट कर जाए, तो वह वाटर कंटेंट इसके अपन क्या कहलाती है, लिक्विड एलिमेंट कहलाती है। ठीक है, यदि पर्टिकुलर नहीं मिल रही तो इसके लिए अपन एक ग्राफ बना लेते हैं स्लोप का, उसका नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाटर कंटेंट के बीच में अपन क्या कर लेते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उससे भी अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा होता है कौन पेनिट्रेशन मीटर। ठीक है, कौन पेनिट्रेशन मीटर, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये अपना एक सॉइल है, तो मैं 30 सेकंड के बाद वापस है ना ऊपर से अपन इसको क्या करते हैं, डिप करा देते हैं, फिर अपन क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकाल के इसकी लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी लिमिट्स के अकॉर्डिंग अपने कुछ फॉर्मूलेज हैं जो अपन पढ़, जैसे कंसिस्टेंसी इंडेक्स की अपन बात कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू एन। तो डब्ल्यू एल क्या है यहाँ पे, वाटर कंटेंट एट द लिक्विड लिमिट, और डब्ल्यू एन की अपन बात करते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर सॉइल है उसके अंदर नेचुरल वाटर कंटेंट जो है, ठीक है, क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो अपनी क्या कहलाती है, डब्ल्यू एन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना है, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन अपॉन आई पी। आई पी क्या होता है, डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकाल सकते हैं। वहीं अपन मैं लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करूँ, इसके लिए जो मैं फॉर्मूले की बात करूँ, यदि आई एल, ठीक है, तो क्या होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट जो भी है सॉइल के अंदर उसमें से अपन को क्या करना है, ई को माइनस कर देना है अपॉन में नीचे की टर्म तो फिक्स रहेगी, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही अपन को के अंतर्गत रहता है। या फिर इसको अपन यदि एक फॉर्मूला भी अपन को याद है कंसिस्टेंसी इंडेक्स वाला, ये कंसिस्टेंट इंडेक्स अपन को लिक्विडिटी इंडेक्स निकालनी, तो इन दोनों का समेशन हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, यानी कि आई एल टू आई सी इक्वल्स टू 1, लिक्विडिटी इंडेक्स कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल्स टू 1। तो अपन को एक का ही फॉर्मूला याद है, आप इसको भी कर सकते हैं, वो कंटेंट एट लिक्विड में नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन में डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू पी करके निकाल सकते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यदि इसकी मैं रेंज करूँ लिक्विडिटी इंडेक्स, यदि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 आ रही है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ रही है तो सॉरी मेरी क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी। यदि इसकी वैल्यू 0.75 से 1 के बीच में आ रही है तो वैल्यू सॉफ्ट रहेगी, 0.575 सॉफ्ट, 0.25 से लेकर 0.50 मीडियम स्टिफ, पॉइंट जीरो से लेकर 0.25 स्टिफ सॉइल कहलाएगी। यदि इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है तो सॉइल क्या रहेगी, मेरी सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर रहेगी। वहीं यदि अपन कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात कर लें तो इसको क्या करना, 1 में से माइनस कर देना। इसका मतलब यदि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है जिसका मतलब क्या हो जाएगी, ये जीरो से लेस हो जाएगी। इसकी बात करूँ तो वैल्यू क्या वेरी करेगी, जीरो से लेकर 0.25 वैल्यू वेरी करेगी, और ये वैल्यू क्या वेरी करेगी, पॉइंट क्या करना है, से लेकर 5 तक वेरी कर लेगी। 1 में से अपन को माइनस करना है, समेशन है वो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो टर्म पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी एक सॉइल है, ठीक है, तो एक्टिविटी के अंदर जैसे हमने देखा था कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। क्ले क्या करता है, क्ले के अंदर मिनरल्स होता है, मोनोमोनोलाइट, जो भी मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल क्या बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग और सिंकेज ज्यादा आता है, स्वेलिंग और सिंकेज क्या आता है उसके अंतर्गत ज्यादा आता है। ठीक है, तो वो सॉइल क्या करती है, एक्टिव सॉइल कहलाती है, इसके अंदर क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसके लिए निकालेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स। तो परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स मतलब क्या आ गया, पार्टिकल जिनकी साइज क्या है लेस देन 2 माइक्रोन है, तो वो क्या करेंगे, उस पार्टिकल्स की अपन परसेंटेज निकालेंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू पी अपॉन में परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स ऑफ द वेट। तो एक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग मैंने सॉइल को यदि क्लासीफाई करें, इसकी वैल्यू 0.75 के बीच आ रही तो सॉइल मेरी क्या है, इनएक्टिव है। सॉइल मतलब क्या है, इनएक्टिव है, तो इसकी वैल्यू पॉइंट में पे नॉर्मल एक्टिव है, और यदि 1 पॉइंट आ रही है तो सॉइल मेरी क्या है, एक्टिव है। उसके बाद यदि अपन टफनेस इंडेक्स की बात करें तो टफनेस इंडेक्स क्या होता है, आई टी, आई टी इक्वल्स टू होता है अपना आई पी अपॉन आई एफ, आई पी आई एफ। तो आई एफ क्या होता है यहाँ पे, फ्लो इंडेक्स। और फ्लो इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो फ्लो इंडेक्स जैसे अपन ने देखा था कि कासे ग्राउंड के अंदर जो होता है नंबर ऑफ फ्लोज अपन ने निकाले, तो एक तरफ क्या कर लेंगे, वाटर कंटेंट, और दूसरी तरफ क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ फ्लोज।
मान लें कि n नंबर ग्लूकोज से वाटर कंटेंट लिए थी, तो ज़्यादा रहेगी, ठीक है, और n2 से ये हो गई, ठीक है, तो दो वाटर कंटेंट आ जाएंगे W1 और W2, उनके ऊपर रेस्पेक्टिव हम नंबर ऑफ ग्लूकोज अपन यहाँ से काउंट कर लेंगे। उसके बाद अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स मेनली जिसकी इतनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो सीएल स्ट्रेंथ अफेक्ट पड़ती है, सीएल हर चीज़ के ऊपर फ्लो इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। उसके बाद अपन बात करते हैं श्रिंकेज रेशियो का, बात करते हैं श्रिंकेज रेशियो का। श्रिंकेज का रेशियो क्या होता है, मेनली अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम V2, यानी ज़्यादा सॉइल ज़्यादा वॉल्यूम होता है V2 या कम होता है V1 होगा, अपॉन में ड्राई वॉल्यूम, अपॉन में क्या कर देना, वाटर कंटेंट का चेंज, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ड्राई वॉल्यूम अपॉन में चेंज इन वाटर कंटेंट से अपन क्या निकाल सकते हैं, श्रिंकेज रेशियो निकाल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं अपन पहले भी निकाल सकते थे, रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स की अपन बात करते हैं। ये क्या होता है, Emax माइनस ई मिनिमम अपॉन में Emax माइनस ई मिनिमम, Emax अपॉन में ई मतलब नेचुरल वॉइड रेशियो, किसी भी सॉइल है उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंतर्गत क्या है, वॉइड रेशियो है, वो अपना क्या कहलाता है, नेचुरल वॉइड रेशियो। तो मैक्स में से अपन क्या करेंगे, नेचुरल को माइनस कर देंगे, अपॉन में Emax अपॉन में ई मिनिमम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी अपन सॉइल की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आती है, वो आती है थेक्सोट्रॉपी, ठीक है। तो थेक्सोट्रॉपी क्या होती है, अभी अपन ने कोई सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल को अपन ने क्या किया, एक्सक्रीट किया, तो सॉइल को क्या करते हैं, एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया, तो सॉइल को डिस्टर्ब करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्टर हो जाती है, प्रॉपर्टीज क्या है, अल्टर हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, सॉइल है वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ है उसको गेन करने लग जाती है, पुरानी स्ट्रेंथ को क्या करने लग जाती है, गेन करने लग जाती है, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू सॉइल लूज इट्स शियर स्ट्रेंथ, भाई सॉइल ने पहले शियर स्ट्रेंथ है वो लूज कर दी, किस वजह से, उसको जब अपन ने एक्सवेट किया यानी कि डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो जैसे सॉइल है वो रिमोल्डेड होकर अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने लग जाए, अनडिस्टर्ब से क्या होने लग जाए, और ये अनडिस्टर्ब सॉइल है की तरह बिहेव करने लग जाए, रीगेन करने लग जाए, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ टू द रीगेन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रीओरिएंटेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या होगी, उसकी शियर स्ट्रेंथ दोबारा इंक्रीज होने लग जाएगी। किसी भी सॉइल की वन थेक्सोट्रॉपी की बात करें तो वो यही होगी, उसकी कितनी उसमें स्ट्रेंथ है वो रीगेन कर ली। उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म और आती है सेंसिटिविटी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, अपन ने कोई भी अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ जिसकी सॉइल की है वो अनडिस्टर्ब सैंपल की, यानी कि उस सॉइल को अपन ने क्या किया, डिस्टर्ब नहीं किया, कोई सैंपल है उसको सीधा का सीधा जैसे कटर की हेल्प से अपन ने विदाउट डिस्टर्ब किए निकाल लिया और उसके अपन ने स्ट्रेंथ निकाल लिया, कंप्रेशन स्ट्रेंथ। उसके बाद में अपन ने रिमोल्डेड उस सैंपल को डिस्टर्ब किया, उसके बाद रिमोल्ड किया, उसके बाद उसके स्ट्रेंथ निकाली, तो उसकी क्या होगी, दोनों का रेशियो के अपन निकाल, तो वो क्या कहलाती है, उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है, ठीक है। अभी अपन एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, यहाँ से चलिए, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय परफॉर्म टेस्ट एंड क्लेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या मेंशन किया हुआ है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है 25%, लिमिट दे रखी है 32%, प्लास्टिसिटी लिमिट दे रखी है 24%, डाया डाया ऑफ 60% साइज दे रखा है अपन को 0.00, यहाँ पर डी टाइनिंग आप जूम कर लीजिए, सेम साइज डी टाइनिंग जूम कर लीजिएगा, यही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत बाकी डिस्कस